What if I told you that the real reason that you're feeling stuck, anxious, heavy, lost, disappointed in your life is due to the fact that you must be holding on to something that's no longer serving any purpose in your life? Give me 10 minutes and I'm going to teach you the art of letting go. Hi, beautiful souls. My name is Krish, a Reiki healer and a practitioner, and your manifestation coach. This video is going to be helpful for the people who are undergoing heartbreaks, past traumatic experiences, guilt, shame, disappointments, anger issues, anxiousness, or in general who are people who are feeling stuck in their life. It's also going to be helpful for those people who are seeking self-growth and spiritual awakening. Let's say you're holding on to a relationship that's ended, a dream that didn't come true. आपको लंदन जाना था but आप जा नहीं पाए. That dream just got shattered. A guilt that you might have said something to somebody that might have hurt them. वो guilt आप भूलना चाहते हो but it comes back to you. It resurfaces your mind. Shame that किसी और ने आपको कुछ चीज़ कह दी है, मे बी आपकी लुक्स पे, आपकी बॉडी पे, आपकी इंटेलिजेंस पे, किसी भी चीज़ पे, और आपका मन दुखा है, आपको हर्ट हुआ है और आप वो चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं. अगर मेरी बात सुन के आपको ऐसा कोई इंसिडेंट आपके जहन में आ रहा है ना, then this video is particularly for you. It's going to help you heal and blossom your life. So first of all, it's very important to know why letting go is so hard. Easy नहीं है किसी चीज़ को let go करना. It's the most difficult job in the whole world. So first, let us know that. So number one, the fear of losing your identity. आपका कोई ड्रीम जॉब चल रहा है, आप उसमें काम कर रहे हो, बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से उसमें काम कर रहे हो, और सडनली आपको एक ईमेल आ जाता है that you have lost your job, your dream job. और सडनली क्या होता है, आपका ड्रीम चूर चूर हो जाता है. तो वो आपने क्या कर दिया, आपने होल्ड ऑन कर दिया. वो आपने सिर्फ वो अपना जॉब नहीं खोया है, आपने अपना ड्रीम खो दिया है. आपने जो अपनी आइडेंटिटी बनाई थी वो ड्रीम से, वो खो दी है. राइट? आपने बड़ी मेहनत से इस जॉब पे काम किया है, अपनी फैमिली को टाइम न देके आपने उस जॉब को प्रायोरिटी दी है, एंड सडनली वो सब कुछ चला गया है. सिर्फ यू आर लूजिंग नॉट जस्ट द जॉब बट एवरीथिंग विथ इट. सो फर्स्ट एक्चुअली इट्स अ फियर ऑफ लूजिंग योर आइडेंटिटी. आपको डर कि यार अब वो चला गया है ना, व्हाट्स लेफ्ट इन योर लाइफ, कि आपने अपना 90% ऑफ टाइम वो जॉब को दिया है एंड नाउ यू डोंट हैव इट. So first of all, it's a fear of losing your overall identity to it. Number two, hope that will change. We hope because we think that it will be fixed. But it's time to ask yourself, how long have you been hoping? And number three is guilt or shame. You think that if you let go of this person or this situation, you are a bad person. But no, in reality, the truth is that you are just being human. So now coming to the solution to it, कि आपने जिस चीज़ को होल्ड ऑन करके रखा है उसको लेट गो कैसे करना है. एंड आई हैव अ 3-step फ्रेमवर्क टू टीच यू हाउ टू लेट इट गो. सो नंबर 1, एक्नॉलेज एंड फील इट. सबसे पहले तो आपको रियलाइज़ होना पड़ेगा कि यार आपने इस चीज़ को होल्ड ऑन करके रखा है. आपने इस रिलेशनशिप पे जो होप लगा के रखी है, काफ़ी टाइम से होप लगा के रखी है, उसको आपको एक्नॉलेज करना है. एंड देन यू कांट रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम. आपने वो चीज़ को काफ़ी टाइम दे दिया है, आपने उस चीज़ पे एफर्ट्स डाल दिए हैं, राइट? सो नाउ व्हेन योर एफर्ट्स डोंट ब्रिंग रिजल्ट्स, दैट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू लेट इट गो. ओके, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है आपके दिमाग में आ रही है तो प्लीज़ लिखिए नीचे कि वो क्या है. से इट आउट लाउड, बिकॉज यू कांट रन अवे फ्रॉम इट. You have to accept it, acknowledge it, feel it, and then we are going to the next step.
ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर द एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन मेड, कि आपने वो रियलाइज़ कर दिया है कि भई आपने इस सिचुएशन को होल्ड ऑन करके रखा है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रीराइट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, the event doesn't define you, you define what it is now. So instead of thinking that they have left me because you were not enough, say it in your mind that their leaving helped me learn my self-worth. You know, ये एक चीज़ करने से, ठीक है, आपने बहुत ट्राई किया कि भाई वो सिचुएशन, वो रिलेशनशिप बच जाए, आपने बहुत एफर्ट्स डाले उस चीज़ पे, बहुत कुछ किया उस चीज़ पे, वो होप था कि नहीं आपका एक्शंस उस चीज़ को, उस सिचुएशन को बेटर बना देगा। बट व्हेन योर एफर्ट्स डोंट गिव यू रिजल्ट्स, इट्स टाइम टू स्टॉप एंड लेट गो ऑफ दैट थिंग। आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, राइट? ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, you know this is one of my favorite, release and replace. आपको मूवी याद है जब वी मेट? उसमें शाहिद कपूर का ब्रेकअप हुआ रहता है और वो बहुत दुखी रहता है, एंड देन गीत एंटर्स इन हिज लाइफ एंड उसको एक जगह पे एक फ़ोटो देती है कि ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, उसको लो, उसको तुम गाली दो, जितना भी जो भी कुछ कहना है वो सब बोलो, एंड देन फ्लश इट आउट, एंड देखो आप कितना लाइट फील करते हो, कितना बेटर फील करते हो। और फिर वो शाहिद कपूर ने वो काम किया एंड देन ही इज रियली फीलिंग बेटर, राइट? तो यही चीज़ करनी है आपको, राइट इट डाउन इन अ पेपर। जितने भी आपके नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, लाइक आपका जॉब चला गया, आपको जितना भी चीज़ बुरा लग रहा है कि आपने जो टाइम दिया है जॉब पे, आपने जितना सेक्रीफाइसेस किया है, जितना भी चीज़ें हैं ना उसको लिख दो पेपर में। जितने भी ग्रजेस, जितना भी वेंजेंस, जो भी आप फील कर रहे हो, बीट दैट एक्सट्रीम इट कैन बी, आपको जितना भी हर्ट फील हुआ है वो सब भी कुछ वो पेपर में लिख दो एंड देन बर्न इट आउट or just tear it and throw it in the universe, and then see how light you are going to feel it. You know that? क्योंकि जब तक, फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लास पूरा भरा हुआ है, अगर इस ग्लास में पूरा पानी यहाँ तक है, ब्रिम तक, तो दूसरा पानी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ग्लास को खाली करना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, जो न्यू लोग आने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आपकी लाइफ में कुछ जगह बनानी पड़ेगी उनके लिए। आप ऑलरेडी इतने फुल हो कि आपको दूसरे लोगों की, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की जगह ही नहीं है आपकी लाइफ में। आप ऑलरेडी हैवी हो, स्टक विथ ओल्ड इमोशंस, ओल्ड मेमोरीज, एवरीथिंग। सो जब ऐसा टाइम आता है जब यू फील हैवी, it's time to release all those old memories, all those old emotions, negative thoughts, and make a space in your life for the new memories, new opportunities, new emotions, new experiences. So यही है, ये 3 चीज़ आप करके देखो एंड आई गारंटी यू, अगर आपकी मेमोरीज में से वो ओल्ड डेटा डिलीट नहीं हुआ है, आप अपनी फ़ोन की बात कर लीजिए ना। जब तक आपका फ़ोन में मेमोरी है, वो स्टोरेज फुल नहीं हुआ है, तब तक आप न्यू वीडियोस, फोटोज़ ले सकते हो। बट एक मोमेंट आता है जब आपका फ़ोन सिग्नल देता है आउट ऑफ स्टोरेज, आउट ऑफ स्टोरेज, तो आपको क्या करना पड़ता है? ओल्ड फोटोज़, पिक्चर्स डिलीट करने पड़ते हैं, या तो फिर आपको नई स्टोरेज बाय करनी पड़ती है। बट जनरली हम क्या करते हैं? ओल्ड फोटोज़, वीडियोज़ जो काम के नहीं हैं, जो हमको लगता है जहाँ हम इसको छोड़ सकते हैं, जाने दे सकते हैं, उसको जाने देते हैं। वी डिलीट इट आउट ऑफ आवर फोन, राइट? सो यही चीज़ें आपकी लाइफ से आपको नए चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए यू हैव टू लेट गो ऑफ द ओल्ड थिंग्स। एंड यू नो, जब ये आर्ट आप सीख लोगे ना, यू विल सी दैट हाउ ब्यूटीफुल दिस लाइफ इज। कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से टू मच अटैचमेंट रखना है, इमोशनल, फिजिकल, मटेरियलिस्टिक चीज़, इमटेरियलिस्टिक, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट इट्स नॉट गुड। क्योंकि आप जब टू अटैच हो जाते हो ना, आप वो चीज़ में चले जाते हो, आप वो चीज़ से भर जाते हो। एंड जब आप किसी चीज़ से भर जाते हो ना, तब आप कोई न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करने के कैपेबल नहीं रह जाते हो। तो जैसे जैसे घड़ा भरता है, फ्लो होता है, राइट? कुछ कुछ चीज़ें फ्लो होने लगती है। सो लेट इट फ्लो, लेट इट गो, एंड इट्स गोइंग टू बी इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट
for your new journey that you're going to experience henceforth. So if you found this video helpful, please like it, share it with your friends and family, and especially with those who you think might get benefit out of this. And please subscribe to my channel. See you. Bye.